Hi and hello dear children. How are you? Hope you all are enjoying your classes. Myself your teacher Safina and welcome to today's class. Children, do you know about good manners? Or what are good manners? Good manners means showing correct public behavior. Like good manner tells us we must behave with others in a respectful manner or in a polite way. Like when you are speaking to somebody, you should use thank you, please, welcome, like this. All these words you should use. Then you should respect the others. You should listen to others before speaking. Knock the door before you are entering to somebody's house or somebody's room. Like this, all these are good manners. And these manners you should develop in yourself. Today, we are going to learn the lesson about this matter only. About this, इस topic में ही आज हम lesson पढ़ेंगे. The lesson is from your NCERT Marigold Book 2 Unit 5. And the name of the poem is Zoo Manners. What is the name of the poem? Zoo Manners. Shall we start? The name of the poem is Zoo Manners. So children, I am going to recite the poem. You should also repeat after me, okay? Zoo Manners. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Children, the poet of this poem is Eileen Matthias. Eileen Matthias. So let's recite the poem once again and understand the story or understand the meaning. चलिए बच्चों, इस पोम को फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं. Be careful what you say or do. आपको बहुत ही सावधान रहना है जब आप क्या करते हो, जब कुछ बोलते हो या करते हो. कहाँ? When you visit the animals at the zoo. जब आप जू में जाते हो, चिड़ियाघर में जाते हो, तो you should be careful. आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं. Don't make fun of the camel's hump. Camel's hump जो ऊंट होता है, ऊंट का जो पीठ में आपने देखा होगा ऊंचा ऊंचा होता है ना, hump. So you should not make fun of that. उसको देखकर आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए. He is very proud of his noble bump. वो अपना जो hump है उसे, जो कैमल है, ऊंट है, वो बहुत ही प्राउड फील करता है, बहुत ही गर्व महसूस करता है. Don't laugh too much. और अब जब जाते हो, चिड़ियाघर में जाते हो, तो कई बच्चे बहुत शरारत करते हैं. वो ज्यादा जानवरों को देखकर हंसी मजाक उड़ाते हैं, चिल्लाते हैं या बहुत जोरों से हंसते हैं. तो उसमें क्या होता है बच्चों की जानवर क्या सोचते हैं कि कहीं आप लोग उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, उनको टीज तो नहीं कर रहे हैं. इसलिए डोंट लाफ टू मच. और किसके ऊपर? चिंपैंजी के ऊपर. हमने देखा है बच्चों,
जब कई बच्चे जू में जाते हैं, जैसे बंदर को देखकर उनको पत्थर मारते हैं, चिढ़ाते हैं, तो यू शुड नॉट डू लाइक दैट। आपको ऐसा नहीं करना है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। चिंपैंजी को देखकर भी आप बहुत ज्यादा देखकर उसको हंसना नहीं। He thinks he is as wise as you or me। जबकि वो क्या सोचता है कि आप जैसा या हम जैसा वो भी एक बहुत ही अच्छा इंसान या वो जानवर अपने आप को अच्छा समझता है, और तो उसके लिए बच्चों आपको उस जानवर को या चिंपैंजी को देखकर हंसना या मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। And the penguins strutting around the lake। जो लेक है, झील के आसपास पेंगुइन्स घूमते हैं। तो स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ना। जो पेंगुइन्स है वो ऐसा देखने से लगता है कि वे अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। वो भी जानवर हो या चिड़िया हो, उनको भी कुछ कुछ समझ आता है कि आप उनको देखकर छेड़ रहे हैं या आप उनको तंग करना चाहते हैं। तो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। वो भी समझ पाते हैं कि आप उनको देखकर क्या रिएक्शन है आपका, आप उनको देखकर छेड़ना चाहते हैं या तंग करना चाहते हैं। तो यू शुड नॉट डू लाइक दैट। अंडरस्टैंड? ट्रीट देम एज वेल। उनको भी आप ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं। एज दे डू यू। वो तो हमको तंग नहीं करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनको भी तंग ना करें। वो जैसे हमें ट्रीट करते हैं वैसे ही हमको उनको भी ट्रीट करना चाहिए। As you will always be welcome at the zoo। अगर आप ऐसा रहेंगे तो you will be always welcome। आपका हमेशा वो स्वागत करेंगे। कहाँ पे? चिड़ियाघर में। तो वो भी आपको देखकर खुश होंगे जब आप उन्हें तंग नहीं करेंगे, टीज नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, है ना, उनको कुछ बोलेंगे नहीं, तो you will be welcome। तब आपको भी वो वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे जू में। उनको भी आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो द पोएट इज एली मतियास। एली मतियास। लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स चिल्ड्रन। प्राउड। P-R-O-U-D। प्राउड का मतलब है गर्व, गर्व महसूस होना। नोबल। नोबल का मतलब क्या है? महान। नोबल का मतलब क्या है? महान। देन वाइस। वाइस का मतलब क्या है? बुद्धिमान। वाइस का मतलब क्या है? बुद्धिमान, समझदार। देन पेंगुइन्स, दे आर बर्ड्स। वी कैन सी द पिक्चर। हम बाद में इनका पिक्चर देखेंगे। स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग का मतलब है अकड़ना। देन रिमार्क। रिमार्क मतलब जब आप किसी के लिए कुछ बोलते हो, कुछ अपना राय रखते हो, कुछ वक्तव्य बोलते हो, दैट इज कॉल्ड रिमार्क। देन वी हैव सीन ऑल दिस एनिमल्स इन द पोएम। ये सब एनिमल्स के बारे में हमने पोएम में पढ़ा। तो लेट्स सी व्हाट आर दे। दे आर कैमल। कैमल के बारे में हमने पढ़ा। कैमल्स हम। सी चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस इज हम। कैमल के जो पीठ के ऊपर जो उठा हुआ आकार जैसा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड हम। कैमल्स हम। देन पेंगुइन्स। दीज आर पेंगुइन्स। देन चिंपैंजी। चिल्ड्रन, you can learn the spellings of these words. C-A-M-E-L camel, C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E chimpanzee, then penguins, P-E-N-G-U-I-N-S penguins। बच्चों, आपको ये जो एनिमल्स का नेम है, you can write 5 times or 10 times in your notebook so that you can learn the spellings very well. Now come to the exercise. Reading is fun. Reading is fun. Question number 1 is, what do you see at the zoo? What do you see at the zoo? Children, you can note it down all these answers in your notebook. So answer will be, we see various animals and birds at the zoo. हम क्या zoo में क्या क्या देखते हैं? वेरियस एनिमल्स, बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह की चिड़िया, है ना, देखते हैं। वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज द कैमल हैव
its back. कैमल के पीठ पे क्या होता है? The camel has a hump on its back. हमने देखा ना पिक्चर में, कैमल के बैक पे, पीठ पे क्या होता है? hump. What is the spelling of hump? H-U-M-P. H-U-M-P. You should learn the spelling. Okay? Now come to the next exercise. Let's talk. कुछ बातें करते हैं. यहाँ पे कुछ questions है. Let us discuss. Have you ever been to a zoo? क्या आपने कभी भी zoo में visit किया है? zoo में आप गए हैं? चिड़ियाघर आप गए हैं? मैं जानती हूँ बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी चिड़ियाघर का सैर जरूर किया होगा, है ना? Name the animals which you have seen in a zoo. तो आपने वहां पे कौन कौन से जानवर देखे हैं? आपने जितने भी जानवर आपने देखे हैं, यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स और यू कैन लिस्ट इट डाउन. आप अपने नोटबुक पे उन सारे जानवरों के जो नाम है, you can write all the names of the animals you have seen while visiting the zoo. You can write in your notebook. Say the names in your own language and then in English. First of all, what you have to do? आपने जो भी जानवरों को देखा है वहां पे, पहले आप अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी भाषा में उस जानवर को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, आप अपने लैंग्वेज में उन जानवरों का नाम कैसे बोलते हो, वो आपको बोलना है. आप यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हुए बोल सकते हैं कि आप अपनी भाषा में, जैसे बंदर को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, तोता को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, वैसे यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. देन यू हैव टू राइट इन इंग्लिश. उसके बाद यू कैन राइट इन इंग्लिश इन योर नोटबुक. नेम द एनिमल यू लाइक्ड द मोस्ट एंड व्हाई. अब उन सारे जानवरों को, जितने भी जानवर आपने देखे हैं वहां पे, विच एनिमल, जो जानवर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, यू हैव टू से द नेम. वो जानवर का नाम आपको बताना है कि कौन सा जानवर आपको सबसे अच्छा लगा एंड व्हाई, और क्यों अच्छा लगा, ये भी आपको बताना है. जैसे अगर आपको अच्छा लगा बंदर, मंकी अगर आपको अच्छा लगा, आपको बंदर क्यों अच्छा लगा? जैसे कि वो बहुत ही आपके साथ खेलता है ना, यहाँ से वहां जंप करता है, फल को तोड़कर आपके लिए शायद लाके भी देता होगा, है ना. सो अगर आपको इसलिए बंदर अच्छा लगा, तो यू कैन राइट व्हाई यू लाइक मंकी द मोस्ट. नाउ नेक्स्ट, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू. क्या आपने चिड़ियाघर में जब आप गए थे, तो क्या आपने कोई भी जानवर को कुछ खाने के लिए दिया था? शुड वी टीज एनिमल्स. क्या आपको जानवरों को टीज करना चाहिए? नहीं. ये तो आप सभी को पता है कि बच्चों, हमें किसी भी जानवर को टीज यानी कि तंग नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं, है ना. नाउ डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू से अलाउड. से अलाउड, से अलाउड का मतलब क्या है? यू हैव टू स्पीक लाउडली. BUMP, बम. यू कैन सी द पिक्चर, बम. जब आप अपने दोस्तों के साथ कभी कभी खेलते वक्त लड़ाई होता है, आप नाराज हो जाते हो, तो अपने दोस्तों को मुक्का मारते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड बम. ओके. नाउ हम, HUMP, हम. यू हैव सीन द कैमल्स हम, है ना. यहाँ पे तो पीठ पे, कैमल के जो पीठ है उसके ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं. नाउ डंप, DUMP, डंप. डंप मतलब कहीं पे कचरे का ढेर लगाना या किसी भी चीज का ढेर लगाना. यू कैन सी हियर पिक्चर, कचरे का ढेर लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डंप. नाउ क्राउड, CROWD, क्राउड. CROWD, क्राउड यानी कि भीड़, लोगों की भीड़. CROW, क्रो. क्रो तो आप सभी को पता है, कौवा. क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, बादल. CLAW, क्लॉ, पंजा. देखिए, यू कैन सी द पिक्चर, किसी जानवर का पंजा दिखाई दे रहा है. नाउ नॉइस,
NOISE, नॉइस यानी कि जोर से आवाज। आवाज जब कुछ ज्यादा हो जाती है तो उसे हम नॉइस कहते हैं, जो अच्छा नहीं लगता, दैट इज नॉइस। प्राइज, PRIZE, प्राइज यानी कि इनाम मिलना। यू कैन सी द पिक्चर, प्राइज, नॉइस, प्राइज। देन साइज, SIZE, साइज, साइज यानी कि आकार। कुछ जानवर के बहुत ही छोटे आकार है, किसी जानवर के बहुत ही बड़े आकार है, तो दैट इज कॉल्ड साइज, आकार। देन पाइस, दिस इज पाइस। बच्चों आपने शायद इसे खाया होगा, पाइस, है ना। देन फ्लाइज, फ्लाइज यानी बहुत सारे मक्खी, मक्खियां। फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज। नाउ चिल्ड्रन, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। यू कैन फॉर्म सम सेंटेंसेस यूजिंग दिस और दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग वन सेंटेंस हियर यूजिंग दिस। दिस is a stick. This is a stick. STICK. Okay? This is a stick. And that is a fan. You can write that is a fan. ठीक है? You can write some more sentences like number 3. This is a book. This is a book. This is a book. And that is a window. That is a window. Children, you can write more sentences yourself. आप अपने आप से और भी sentences बनाकर you can note down in your notebook. Now children, come to the exercise. Let's write. आपको लिखना है कुछ words in blanks में. Let's read the question. A visit to my village. ठीक है? Fill in the blanks with the words from the box. यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, some words are given. You have to choose the correct word and fill up the blanks. Horses, village, cat, dogs, milk, kitten, hay, pond, grandmother, cow, cock and hen. ये सारे words आपको use करने हैं और you have to fill in the blanks. First sentence is, in June we went to a dash. See, आपके लिए for your hint, the picture is also given here. You can see the picture. In June we went to a village. See, what is written here? Village. You can see the picture. You have to write village. Okay. Next, where my dash lives. जहाँ पे मेरी grandmother रहती है. See, what is here? Grandmother. In June we went to a village where my grandmother lives. She has a farm. On her farm there are many animals. Now next is, there are two dash. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, two horses. HORSES. There are two horses. A dash. Picture is cat. तो a cat with its, यहाँ पे क्या है, दो बिल्ली के बच्चे हैं, तो दैट इज किटन. विथ इट्स किटन. With its kitten
dog. 3 dogs. DOGS. 1 क्या है? hen. यहाँ पे क्या पिक्चर है? hen का पिक्चर है, तो यू कैन राइट hen. 1 hen. और उसके बाद क्या है? as well as a dash. उसके साथ और क्या है यहाँ पे? cock. 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 and a dash. और क्या है? This is a cow. So you have to write cow. 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 Now next sentence is every morning she feeds her animals with. ये क्या है? Hay. This is called hay. So every morning she feeds her animals with hay. 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 Or what is this? Milk. 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 Next sentence is they drink water from a dash. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है pond का, तो you have to write pond. On the farm. Let's read out the sentences. There are 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay or milk. They drink water from a pond on the farm. Now dear children, come to the composition corner. Composition corner. Look at the picture and fill in the blanks. You can see the picture. With the help of these pictures and with the help of these words, you can fill up the blanks. There is a dash. There is a bee. You can write this word bee. BEE bee. It has dash on its wings. bee के जो wings है उसमें क्या है? lines. और words यहाँ पे दिया हुआ है lines. It has lines on its wings. It has 2 antennas. It has 2 antennas. TWO. 2. It buzzes round the dash. Bee कहाँ buzz करते हैं? Around the flower. तो it buzzes round the flowers. It dashed and came to the zoo. तो यहाँ पे क्या बचा है? Buzzed and buzzed. It buzzed and came to the zoo. You will write BUZZED buzzed. One more time. BUZZED buzzed. चलिए एक बार पढ़ते हैं सेंटेंसेस को. There is a bee. It has lines on its wings. It has 2 antennas. It buzzes round the flowers. It buzzed and came to the zoo. Now dear children, let us do something. कुछ हम करते हैं, ठीक है? Help the bee to reach its home. What are the things that it met on the way that rhyme with bee? अब ये bee जब अपना घर जा रहा है तो रास्ते में कुछ चीजों से उसकी मुलाकात होती है, ठीक है? But the name of that things are rhyming with bee. जैसे कि चलिए हम इसको अपने घर तक पहुंचाते हैं. ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इसको क्या मिला? P. This is P. अब उसके बाद यहाँ से आया, then ये क्या है? Tree. उसके बाद यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंचा, उसको क्या मिला? T. यहाँ से वो जा रहा है, यहाँ क्या मिला उसको? T. और ये सीधा अपना घर पहुंच गया. तो रास्ते में क्या क्या मिला? The words which rhyme with B. They are P, tree, key and T. Dear children, come to the exercise. Look at the pictures and fill in the blanks. You will see the picture and you have to complete the name of the animal. So this is lion, and what is the spelling of lion?
L-I-O-N, lion. ठीक है, this is tiger, T-I-G-E-R, tiger. Next is wolf. What is the spelling of wolf? W-O-L-F, wolf. Then this is deer, D-E-E-R, deer. W-O-L-F, wolf, D-E-E-R, deer. Now this is jackal. And what is the spelling of jackal? J-A-C-K-A-L, jackal. And this is owl, O-W-L, owl, jackal and owl. Now next is, you can see the picture of monkey. You have to write the spelling. M-O-N-K-E-Y, monkey. Then what is this? Bear, B-E-A-R, bear. Next is chimpanzee. ये आप देख रहे हैं chimpanzee. So many letters are there. You have to complete the word. C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E, chimpanzee. Then this is giraffe, G-I-R-A-F-F-E, giraffe, chimpanzee, giraffe. Dear children, come to the exercise, join the dots. You have to trace the picture and complete it. Complete the name of the animal. First, you can trace the picture and see which is the animal. Then you can complete the word. तो बच्चों, ये जो जानवर का चित्र है आपको ट्रेस करना है. कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट द वर्ड. बच्चों, ट्रेसिंग वर्क इज वेरी इजी फॉर यू, isn't it? ट्रेसिंग जो एक्टिविटी है बच्चों, आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा क्योंकि बहुत आसानी से आप उसको, जो पिक्चर है उसको कंप्लीट कर पाते हो, है ना? So, can you see which animal is this? Can you see which animal is this? This is a dinosaur. And what is the spelling of dinosaur? D-I-N-O is written, S-A-U-R, dinosaur. D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur. Dear children, now we will do the last exercise of this lesson. Okay, rearrange the jumbled letters to form words from the poem. तो बच्चों, यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उनके जो स्पेलिंग है जंबल वे में रखा हुआ है, उसको सही सीक्वेंस में लाते हुए आपको करेक्ट वर्ड बनाना है. तो MNAENR, ये कौन से स्पेलिंग, कौन से वर्ड का स्पेलिंग है? ये है मैनर. M आप ऐसे लिखेंगे, MANNER, मैनर. नेक्स्ट है TISVI, ये कौन सा वर्ड है? विजिट. VISIT, विजिट. ठीक है. उसके बाद है NOBLE, ये है नोबल. NOBLE, नोबल. देन ये क्या है? MREKAR, ये है रिमार्क. REMARK, रिमार्क. इसके बाद है ACRELUF, ये कौन सा वर्ड है? केयरफुल. CAREFUL, दिस इज केयरफुल. देन नेक्स्ट SWIE, ये कौन सा वर्ड है? ये है वाइज. चिल्ड्रन, यू कैन राइट लाइक दिस, WISE, वाइज. अब है
Penguin। ये कौन सा वर्ड है? ये है पेंगुइन का स्पेलिंग। तो पेंगुइन का स्पेलिंग क्या है? Penguin। ये है पेंगुइन। The last one is WCLEMOE। अब ये कौन सा वर्ड है? ये है वेलकम। WELCOME। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है आप तभी कर पाएंगे जब आप वर्ड्स की स्पेलिंग को याद करेंगे। You can write the spellings in the notebook repeated times and you can learn the spellings। तभी आप ये जो एक्सरसाइज है इसको सही तरीके से कर पाएंगे। तो चिल्ड्रन, दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज। चिल्ड्रन, जितने भी एक्सरसाइजेस हमने आज किए हैं, आई होप दैट यू विल रिपीट अगेन एंड अगेन एट योर होम, लर्न द स्पेलिंग्स, लर्न द पोएम एंड note down all the question answers in your notebook. So we will meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.